Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Light, Sound and Force. Light. The sun gives us light on the earth. Without the presence of light, we cannot see anything. An electric bulb also gives us light. These are luminous objects. Luminous objects are sources of light. Can you name some other things that give us light? See, what is light? अर्थ पे जो लाइट है वो हमें मिलता है सन से एंड विदाउट लाइट की प्रेजेंस हम कुछ भी नहीं देख सकते. आपका इलेक्ट्रिक बल्ब भी एक लाइट है, वो हमें लाइट देता है. ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आपके लाइट के सोर्सेज होते हैं. Many objects in our surrounding are not luminous, like a pen, table, book and paper. They did not give out its own light, so they are called non-luminous objects. हमारे आसपास ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें लाइट नहीं मिलती है, तो उन्हें हम कहते हैं non-luminous object. We can see these objects when light falls on them. We see non-luminous objects only when light falls on them. Light is very essential for us. Plants cannot make their food if there is no sunlight. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तब देखते हैं जब लाइट उस पर पड़ती है एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को हम नहीं देखते हैं. हम देख पाते हैं उन्हें तभी जब हम लाइट उस पर पड़ती है. तो लाइट बहुत ही असेंशियल है हम सभी के लिए. प्लांट्स भी अपना खाना जो है विदाउट सनलाइट बना ही नहीं सकते हैं. Shadow. When the path of light is blocked by anything, a shadow is formed. When we stand in the sun, we block the path of sunlight. This is why our shadow is formed. जब लाइट का पाथ ब्लॉक हो जाती है, कोई भी चीज़ ब्लॉक करती है तो एक शेडो बनती है. और जब हम सन में खड़े होते हैं तो हम सनलाइट का पाथ जो है उसे ब्लॉक करते हैं, इसीलिए हमारी शेडो बनती है. शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट. शेडो हमेशा ऑपोजिट साइड, अगर आपका सोर्स ऑफ लाइट उस तरफ है तो आपकी शेडो दूसरी तरफ बनेगी, यानी कि ऑपोजिट साइड. Our shadow formed in sunlight looks like us, but sometimes it is smaller and sometimes bigger than us. Can you tell about when it is smaller and when it is bigger than us? हमारी शेडो जो बनती है सनलाइट में वो हमारी तरह दिखती है, लेकिन कई बार वो छोटी होती है और कई बार वो बड़ी होती है. As we have know that light travels in a straight line, if any object blocks the way of light, then the shadow is formed. But do you know the speed of light? You can't imagine how fast the light travels. हम जानते हैं लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लाइट के वे को ब्लॉक करता है देन शेडो बनती है. एंड स्पीड ऑफ लाइट अगर आपको पता चलेगा कितनी फास्ट है ये. Speed of light. When you switch on a light bulb, you see it lights up at once. Actually, it takes very little time to reach up to your eyes. This time is so little that's why we can measure it. It is less than 100 millionth of a second. हम कभी भी बल्ब को लाइट करते हैं, जलाते हैं तो एकदम से लाइट हो जाता है एंड एक्चुअली ये बहुत कम टाइम लेता है. एंड हम इसे मेजर भी नहीं कर सकते क्योंकि ये एक सेकेंड का 100 मिलियंथ होता है. लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन. ये सभी को पता है कि लाइट जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. Do you know what? The light of sun takes 8 seconds to reach on the earth, while the sun is highly far away from the earth planet. सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट का टाइम लगता है, जबकि सन अर्थ से बहुत दूर है. How do you see things? We need light to see things. We can see things that give out light, such as a burning candle or an electric bulb. But a book or a ball does not give out light. How do we see the book or a ball? हमें कोई भी चीज़ देखने के लिए ना लाइट की ज़रूरत होती है. ओके तो हम चीज़ें तभी नज़र आती हैं जब कोई चीज़ लाइट गिव आउट करती है, जैसे कि बर्निंग कैंडल या इलेक्ट्रिक बल्ब. हम बुक और बॉल जो है वो लाइट नहीं देती है, तो फिर हमें बुक और बॉल नज़र कैसे आती है? When light of the sun or electric bulb falls on the book or ball, it bounces off. When this bounces, light falls on our eyes. We can see the book and a ball. We see things when they bounce light to our eyes. We can see the moon when it bounces sunlight to our eyes. Bouncing of light is called a reflection. जब सन की लाइट या इलेक्ट्रिक बल्ब बुक या फिर बॉल पे पड़ते हैं तो ये लाइट को बाउंस बैक करते हैं.
तो ये बाउंस बैक होकर लाइट हमारी आंखों पे आती है एंड देन हम उस चीज़ को देख पाते हैं. तो दिस बाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. Sound. When we talk, we are making a sound. Our tongue helps us to make sound. We hear sound of all kinds with the help of our ears. We hear various kinds of sound around us. We hear the ring of a bell or telephone, the cry of a baby, the bark of a dog, the chirp of a bird, etc. जब हम बात कर रहे होते हैं ना तो हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड हम आसपास हमारे बहुत सारी साउंड सुनते हैं, जैसे डॉग बार्क करता है या बेबी की क्राइंग है या फिर टेलीफोन बेल की रिंगिंग है. सो वी लिसन वेरियस काइंड ऑफ साउंड्स अराउंड अस. Almost everything around us makes sound, but some sounds are pleasant to hear and some are not pleasant to hear. Pleasant sound. The sound that we make may be pleasant or unpleasant. Pleasant sound are those which are soft. Listening of soft sound gives us soothing feeling. We enjoy these sounds such as the sounds made by musical instruments, chirping sound made by birds. हमारे आसपास बहुत तरह की साउंड्स होती हैं, कुछ प्लेजेंट होती हैं एंड कुछ अनप्लेजेंट. प्लेजेंट जो हमारे कानों को बहुत सॉफ्ट लगती है, बहुत ही हमें सूदिंग फील देती हैं, वो आपकी प्लेजेंट साउंड होती है. जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनकी साउंड बहुत ही प्लेजेंट होती है. वी कैन मेक प्लेजेंट साउंड विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. We enjoy a lot to hearing musical sounds. Musical instrument से pleasant sound produce होती है. For example, ये आपको जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं ये सभी म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो बहुत ही सूदिंग होती है. Do you know what? The flute is the oldest musical instrument used by human being. Flute सबसे पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे human being ने यूज़ किया था. Unpleasant sound. Loud sound can be unpleasant. Loud sound disturb and can make us irritate. Too much loud sound is called noise. Listening of noise for long time can affect our health. That is why we should learn to speak softly. Loud sound जिसे कि हम noise यानी कि शोर कहते हैं, हमारे कानों के लिए बहुत ही unpleasant होता है और हम अगर इस शोर को लंबे टाइम तक सुनेंगे तो हमारी हेल्थ को वो इफेक्ट कर सकता है. Too much of noise hurts our ears, so we should always play television, music system, etc. at low volume. बहुत ज़्यादा शोर हमारे कानों को हर्ट कर सकता है, इससे हमने टेलीविज़न या म्यूज़िक सिस्टम को हमेशा लो वॉल्यूम पे रखना चाहिए. Force and energy. In our daily life, we do many work. Sometimes we push an object and sometimes we pull the object. That causes an object to start or stop moving. An object moves when you push and pull. This push and pull is called force. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारा काम करते हैं. कई बार हम कुछ चीज़ों को पुश करते हैं जबकि कई बार हम उन्हें पुल करते हैं. तो इस पुश और पुल की वजह से कोई काम स्टॉप हो जाता है, कोई स्टार्ट हो जाता है. तो इस पुल और पुश को हम कहते हैं फोर्स. फोर्स कैन मूव ऑब्जेक्ट्स. फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करता है एंड किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है. इट कैन मेक थिंग्स गो फास्टर. इट कैन स्लो डाउन मूविंग थिंग्स. इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स. ये किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को फास्ट कर सकता है या फिर उसे स्लो कर सकता है एंड ये मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है. When we apply some force on an object, the object moves. It means we have done some work. We need energy to do work. Where do we get energy from? We get energy from the food that we eat. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मूव करता है. दैट मीन्स उसने कुछ वर्क किया है एंड वर्क करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है एंड ये एनर्जी मिलती है हमें फूड जो हम खाते हैं. फिर where does a car get energy to move? It gets energy from petrol. From where does your battery operated toy car get energy to move? It gets energy from the batteries in it. कार मूव करती है, उसे एनर्जी कहाँ से मिलती है? पेट्रोल से. हमारी टॉय कार चलती है, उसे कहाँ से एनर्जी मिलती है? बैटरीज से. Let us recall, we get light from luminous objects. We can see the non-luminous objects when a light fall on them.
हमें लाइट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से मिलती है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को हम तभी देखते हैं जब उस पर लाइट गिरती है. लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और शेडो बनती है जब लाइट का पाथ ब्लॉक हो जाता है. साउंड्स आर ऑफ प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट. लाउड साउंड इज कॉल्ड नॉइज विच इज नॉट हेल्दी फॉर अस. साउंड्स आपकी प्लेजेंट और अनप्लेजेंट होती हैं और लाउड साउंड जैसे कि हम नॉइस कहते हैं वो हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है. A push or pull of an object to change its position is called force. किसी भी चीज़ को हम पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं तो that is called force. So children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा एंड आप इसकी प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.